Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 11 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture, we are going to perform the following conversions. First of all, we will convert a binary number into a decimal number. Then we will be performing conversion of binary to octal, and at the end we will convert a binary number into equivalent hexadecimal number. Now the first conversion that we are going to perform is binary to decimal. So in this topic or in this slide, we will understand that how we can convert a given binary number into a decimal number. अब हम थोड़ा सा देख लें कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है. एक ऐसा सिस्टम जिसकी बेस 2 है. इट मीन्स दैट वी हैव ओनली 2 digits 0 and 1. Now what is a decimal system? A decimal number system has a base of 10. It means there are 10 discrete digits from 0 to 9. So हम कैसे एक बाइनरी नंबर को एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट we will have to start with the least significant bit. Now the meaning of LSB is least significant bit. And there is an equivalent term MSB, which means that most significant bit. Now what are these? Let's suppose I have a number written here. Let me write the number. I have a number 1 0 1 0 1 1 0 1 0 and 1 and 0. Now the 0 here is the least significant bit and the 1 here is the most significant bit. Now this is MSB and this is the least significant bit. तो हम क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ को मूव करेंगे एंड मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ द बाइनरी वैल्यू विद रेजिंग पावर ऑफ 2. मैं इसको रिपीट कर दूं. We will start with the least significant bit and move towards the most significant bit, and this movement will be done digit by digit, and after that we will multiply each digit of the binary value with the rising power of 2. For example, in this, let's suppose we have a binary number 1 0 and 1. Now this is the least significant bit and this is the most significant bit. We will move in this direction from least significant bit to most significant bit and multiply each digit with power of 2. For example, we will write 1 multiply 2, then we will write 0 multiplied by 2, and then we will write 1 multiplied by 2. Now this one is least significant bit and this one is most significant bit. Now the next thing is that we have multiplied each digit of the binary value with 2. Now what are the rising powers? The power at least significant will be 0. The power at next one will be 1. The power at the next one will be 2. So you can say that कि जब भी हम least significant bit से start करेंगे
तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे जो डिजिट होगा उसको हम 2 की 0 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज। इट मीन्स दैट वी विल हैव प्लस हेयर एंड प्लस हेयर, ताकि हम इन वैल्यूज को ऐड करें। और ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास डेसिमल नंबर होगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल हैव 0 एज पावर ऑफ 2. Digits next to least significant bit will have 1 as power of 2, and this process will continue till we reach the most significant bit. Now here is an example. We have a binary value 1110 and we want to convert it into the decimal number system. Now this is in binary and we want to convert it in the decimal number system. अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ये बाइनरी डिजिट लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो बिट है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है और ये जो बिट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। सेम वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 multiplied by 2. Next we will have again plus 1 multiplied by 2. यानी हम इस डायरेक्शन में चले फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स लगाएंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे पावर 0 होगी, उससे नेक्स्ट पे 1 और मोस्ट सिग्निफिकेंट पे 2, क्योंकि 3 डिजिट्स है ना, 0 1 2। अब हमने सिंपल मैथमेटिक्स परफॉर्म करना है। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये वैल्यूज किसके इक्वल आएंगी, 0 प्लस 2 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 6। सो यू कैन से दैट 1110 of the base 2 is equal to 6 base 10। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि अब हम 6 को दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या प्रोसेस बताया था कि हम ये लेआउट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम डेसिमल नंबर लिखेंगे और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ 2 1 टाइम्स 2 to 2 times 4 and 2 3 times 6, so we will write quotient here, 2 3 times is 6 and the remainder is 0। अब हमारे पास जो क्वोशंट है वो 0 या 1 नहीं है, तो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। हम फिर इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 1 times is 2, 2 1 time is 2 and the remaining is 1। अब हमारे पास जो क्वोशंट है वो 1 है, तो हमारी कन्वर्जन कंप्लीट होगी। तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे और फिर ऐसे रीड करेंगे, कंकैटिनेट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1110। सो ये फर्स्ट एग्जांपल थी, एग्जांपल 1, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं।
ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। यहाँ पर मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दिस इज बाइनरी नंबर एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ अगेन व्हाट विल बी द प्रोसेस। अब हम दोबारा इस नंबर को राइट करते हैं 0 1 0 0 1 1 0। ये मैंने नंबर राइट कर लिया। ये 0 जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है और ये 0 जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। सो अगेन we will move in this direction from least significant to most significant, and we will multiply each number with powers of 2. 0 multiplied by 2, then we will have 1 multiplied by 2, then we will again have 1 multiplied by 2, then we have 0 multiplied by 2, then we again have 0 multiplied by 2, then again we have 1 multiplied by 2, and then we have 0 multiplied by 2. Now this 0 is least significant and this 0 is most significant. अब हमने इनको पावर्स लगानी है, क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है तो यहाँ पर पावर आएगी 0, नेक्स्ट पावर आएगी 1 एंड वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस आफ्टर दिस we will add these values, so we will have a plus sign here. मैं इसको कॉपी कर लूँ, ये सारी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। अब हमने सिंपल मैथमेटिक्स परफॉर्म कर रहा। 0 2 raised to power 0 is 1, 2 raised to power 1 is 2, 2 raised to power 2 is 4, 2 raised to power 3 is 8, 2 raised to power 4 is 16, 2 raised to power 5 is 32, 2 raised to power 6 is 64। ये हमारा सिंपल हमने पावर्स को एवेलुएट किया। अब हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 0। अब हम इनको ऐड करते हैं, 2 और 4 6 and 2 32 is 38। So we can say that this number is equivalent to 38 in the decimal number system. So ये हमारे पास इसका रिजल्ट जनरेट हुआ। Now this is a simple conversion that involved conversion from binary to decimal. The next conversion we have is binary to octal. For converting a binary number into an octal number, we will need 2 steps, or you can say that this conversion involves 2 steps. The first step involves conversion of a binary number into decimal number, and the second step involves conversion of a decimal number into octal number. यानी जब भी हमें ये कन्वर्जन आएगी कि हमने बाइनरी सिस्टम को या बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम सबसे पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में लेकर जाएंगे और फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जांपल।
एग्जाम्पल 1 कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। सो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर पे या ऑक्टल सिस्टम में। यहाँ पर हमारे पास बेस 2 है और यहाँ पर हमारे पास बेस 8 है। नाउ इट इज़ ए 2-स्टेप प्रोसेस। इन द फर्स्ट स्टेप वी विल कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। अब इस कन्वर्जन के लिए हम वही प्रीवियस प्रैक्टिस यूज़ करेंगे जो हमने बाइनरी टू डेसिमल की स्लाइड्स में या एग्जांपल्स में यूज़ की। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस नंबर को राइट अप कर लेंगे। अब इस नंबर में ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट है और ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हर डिजिट को या हर नंबर को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 1 जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये 0 जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट हम इन पे पावर्स लगाएंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट पे पावर 0, उसके बाद पावर 1, पावर 2 और पावर 3। उसके बाद इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर प्लस साइन। इसके बाद हम सिंपल मैथमेटिक्स परफॉर्म करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड 1, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। 0 + 2 + 4 + 8 एंड दिस इज इक्वल टू 14. So you can say that 1110 of the binary is equivalent to 14 of the decimal. अब ये कन्वर्जन हमने डेसिमल में की। द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। नाउ दिस इज द step 2. In step 2 we will convert decimal to octal. अब डेसिमल को ऑक्टल में कैसे करेंगे, हमारे पास डेसिमल वैल्यू क्या है, डेसिमल वैल्यू इज़ 14 एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल। तो उसका सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया था डिवीजन रिमाइंडर का, कि हम एक लेआउट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम डेसिमल नंबर लिखेंगे और इसको हम 8 पर डिवाइड करेंगे बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग द नंबर इनटू ऑक्टल सिस्टम। नाउ 8 1 times is 8 and 8 2 times is 16. So we will be using this option because this is less than 14 and closest to it. So 8 1 times is 8 and the remainder is 6. अब हमारे पास जो कोशेंट वैल्यू है ये 8 से लेस है, so our conversion is completed. We will read it in this direction and write it out. So we will have 1/6. Now what is this 1/6? This is octal value. So you can say that 14 in the decimal is equal to 1/6 in the octal. So what is the overall result? This value is the overall result. So we can say that 1110 of the binary is equivalent to 14 of the decimal and 14 of the decimal is equivalent to 16 of the octal. So 1110
of the binary will be equivalent to 1/6 of the octal. So this is our answer. इसमें आपने दो ही चीज़ें याद रखनी है कि पहले स्टेप में हम हमेशा बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड स्टेप में जो डेसिमल वैल्यू है उसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें अगेन वी हैव अ बाइनरी नंबर एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्टल नंबर, सो वी विल अगेन बी यूजिंग the two-step process. In the first step we will convert the binary decimal into the binary number into the decimal system, so we are using the same process. And in the second step we will use the decimal value and convert it into the octal value. So ये example आप खुद से भी एक दफ़ा करके देखिएगा। The next conversion is from binary to hexadecimal. octal की तरह ये भी two-step process है। हम बाइनरी को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आल्दो एक मेथड एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए हम अभी इनडायरेक्ट प्रोसेस यूज़ करेंगे। इन द स्टेप 1 वी विल कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर एंड इन द सेकंड स्टेप वी विल कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। ये बिल्कुल बाइनरी टू ऑक्टल की तरह ही है। हमने सिंपली बाइनरी से मूव कर जाना है डेसिमल में और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, यानी ये हमारे पास क्वेश्चन होगा कि कन्वर्ट दिस बाइनरी वैल्यू इनटू हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, वही दो स्टेप यूज़ करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 कन्वर्ट 1110 टू डेसिमल, यानी जो हमारे पास बाइनरी नंबर है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम इस नंबर को राइट अप कर लेंगे, उसके बाद हम सिंपली इंडिकेट कर लेंगे कि ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट है और ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको पेपर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब हम पावर्स लगाएंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट पर पावर 0, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट वी हैव पावर 2, नेक्स्ट वी हैव पावर 3, और इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8। 0 + 2 + 4 + 8 which is equal to 14। तो आप कह सकते हैं कि 1110 of the binary is equivalent to 1/4 of the decimal। तो हमने एक पार्ट अचीव कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 विल बी कन्वर्ट 14 into हेक्साडेसिमल, यानी हमारे पास जो ये वैल्यू आई डेसिमल की, इसको हम यूज़ करेंगे
स्टेप 2 में, और स्टेप 2 में यूज़ करके क्या करेंगे, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यानी इस पॉइंट पर हमारा क्वेश्चन ये है कि 14 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू एम्प्टी स्पेस हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन का मैंने आपको सिंपल प्रोसेस बताया था कि आप किसी भी नंबर को 16 पर डिवाइड करेंगे। तो अब हम एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 14, इसको हमने डिवाइड करना 16 पर। अब हमारे पास सिंपल रूल है 16 1 टाइम्स इज 16। अब ये जो 16 है ये इस 14 से ग्रेटर है, तो हम इस पर तो नहीं जा सकते। तो हम डिवीजन का सिंपल रूल देखेंगे। डिवीजन का सिंपल रूल क्या कहता है कि अगर आपने इंटीजर डिवीजन करनी है और कोई चीज़ पूरी डिवाइड नहीं हो रही, तो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 0 टाइम्स इज़ 0 एंड द रिमाइंडर इज़ 14। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 16 0 टाइम्स इज़ 0 एंड द रिमाइंडर इज़ 14। अब हमने हेक्साडेसिमल में अच्छी तरह देखा था कि 10 को हम A कहते हैं, 11 को हम B से डेजिग्नेट करते हैं, 12 इज़ इक्विवेलेंट टू C, 13 इज़ इक्विवेलेंट टू D, 14 इज़ इक्विवेलेंट टू E and 15 इज़ इक्विवेलेंट टू F. So we will not write 14 as 14. Instead we will use the symbol E. It means that we have a 0 E or simply E. हम इसको सिंपल ऐसे भी राइट कर सकते हैं। सो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ये है। सो नाउ 1110 इन द बाइनरी is equivalent to 14 is in the decimal, and 14 in the decimal is equivalent to E in the hexadecimal. So this will be our answer. आप यहाँ पर 0 भी इसके साथ लिख सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। इसी तरह ये हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे फिर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। सो यू कैन अप्लाई द सेम प्रोसेस टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, एंड आफ्टर द कन्वर्जन you can simply divide the decimal number by 16 to get the hexadecimal number. So next lecture में भी हम कुछ मज़ीद कन्वर्जन्स परफॉर्म करेंगे।